नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। केंद्र की ओर से बहुत जल्द ही असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर बराक घाटी के कछाड़ एवं करीमगंज जिले से सटे असम मिजोरम सीमा का निरीक्षण किया जाएगा। इस विषय को लेकर जानकारी देते हुए आज असम सरकार के मुख्य सचिव जीसू बरुआ ने कछाड़ जिला उपायुक्त कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किए। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता गौतम तालुकदार का यह रिपोर्ट। आपको बता दें कि असम के नागरिक इम्तियाज अली की मिजोरम में हुई मौत की घटना से हालात इतने बिगड़ गए थे कि असम सरकार के मुख्य सचिव जीसू बरुआ को मौके पर आना पड़ गया था। कल से ही मुख्य सचिव जीसू बरुआ बराक घाटी के दौरे पे हैं। आज उन्होंने कछाड़ जिला उपायुक्त कार्यालय में सीमा विवाद और सीमा से सटे इलाकों की सुरक्षा को लेकर एक संवाददाता सम्मेलन किए। आइए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहे। Honorable Chief Minister sent DGP and myself to the family of the bereaved family at Lalapur, Penchnagar and Lalapur, and yesterday ex gratia amounting to rupees 5 lakhs was provided the next of kin of the family, and over and above that a condolence message was also read out. This morning we have had a discussion with 3 deputy commissioners of 3 districts and the DIG and the senior police officers and forest officers on the various options that are available to us. We find that there is a possibility of a peaceful solution to the problem. First and foremost is that peace has to be maintained at all costs. We must display restraint and patience. The state government is trying its best to find a peaceful solution to the current imbroglio and the problem. Government of India has also indicated that some forces would be made available to be placed in the interstate boundary. So as and when the forces come, I think there will be peace on both sides, but it's of great importance. সকলোকে মানে আৰ্জ কৰোঁ, আহ্বান এটা ইস্যু কৰিছোঁ এটা যে there should be peace আৰু সেইটো this peace has to be maintained at all costs. স্যার কেতিয়া আহিব কিন্তু ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অৰ্ডাৰ এটা নটিফিকেশ্যন ওলাই গৈছে, এদিন দুদিনৰ ভিতৰত আহি যাব পাৰে। There will be some companies of central forces. এইখিনি অহাৰ পিছতে তেতিয়াহ'লে আমি এই ফ'ৰ্চ যিখিনি আছে এইবোৰ আমি ডিপ্লয় কৰিব পাৰিম বৰ্ডাৰ এৰিয়াত। আৰু এই কাছাৰ বুলি নহয়, কৰিমগঞ্জতো এই ফ'ৰ্চটো যাব। ইতিমধ্যে মিজোৰামতো আলোচনা হৈ আছে, তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছ আৰু চিভিল ছ'চাইটি মেম্বাৰ্ছবিলাকৰ লগত এটা আলোচনা চলি আছে। তাত কি আউটকাম আছে আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। সেইটো আউটকাম হয়তো আমি গধূলিলৈকে গম পাম। এতিয়া এই ডিছকাশ্যনছবোৰ চলাত যদি পজিটিভ আউটকাম হয় তেতিয়া হয়তো আমাৰ সলিউশনটো খুব সোনকালে হৈ যাব। राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बार बार अपने जनसभाओं में मदरसा और संस्कृत टूल को बंद करने की बातें कर रहे हैं। विधानसभा से पारित हुई कोई भी चीजों को एक मंत्री के तौर पर वह कैसे बंद कर सकते हैं और कैसे बार बार ये बातें कह सकते हैं। उनका इस फैसले के विरोध में आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। कौन ज्ञापन भेजा और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। दरअसल पिछले कई जनसभाओं में शिक्षा मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बार बार ये बातें दोहरा रहे हैं कि असम में जितने भी मदरसा है तथा संस्कृत टोल है उसे वो बहुत जल्द ही बंद करने वाले हैं। उनका यही फैसले को बदलने के लिए आज एमआरएच सरिया तथा नदवातूत के कछाड़ जिला शाखा समिति के कार्यकर्ताओं ने आज कछाड़ जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। इस दौरान मौके पे उपस्थित थे मौलाना अताउर रहमान मजार भुइया, मौलाना आयुब अली हुसैन अहमद, मजुमदार आजिमुद्दीन प्रमुख।
শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বারবার সংবাদ মাধ্যমে আসামের সংস্কৃত টুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার ঘোষণা দিচ্ছেন, অথচ এ ব্যাপারে আসাম বিধানসভায় ব্রিটিশ যুগ থেকে বারবার আইন পাস হয়েছে, অ্যাক্ট আছে, অনেকটা অ্যাক্ট আছে, সংবিধানের গ্যারান্টি আছে, এর উপর ভিত্তি করে সংস্কৃত টুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষা চলছে। একজন মন্ত্রী এভাবে বললেই সেটা বন্ধ করতে পারেন না। তথাপি তার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য আমরা কাছাড় জেলা ইমারতে শরিয়া ও নদওয়াতুত তামিরের একটা সামাজিক সংগঠন এর পক্ষ থেকে আজ আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি কাছাড়ের ডিসির মাধ্যমে প্রেরণ করেছি এবং আজকে সমগ্র আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়ার প্রতিটি আমাদের উত্তর পূর্ব ভারত ইমারতে শরিয়া ও নদওয়াতুত তামিরের প্রতিটি জেলা শাখা থেকে ডিসি আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে এবং এর কপি আসামের গভর্নর, ভারতের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে পাঠানো হচ্ছে। আমাদের দাবি হচ্ছে যে মাদ্রাসার ডিরেক্টরিয়েট শিক্ষামন্ত্রী বাতিল করেছিলেন, সেই ডিরেক্টরিয়েট পুনর্বহাল করতে হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সংস্কৃত টুল যেভাবে শিক্ষা চলে আসছে উইদাউট এনি ডিস্টারবেন্স সেই শিক্ষা চালু রাখতে হবে। যদি এর পরেও সরকার সিদ্ধান্ত না নেন তাহলে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং আইনি প্রক্রিয়ায় তার বিরোধিতা করে মাদ্রাসা শিক্ষা এবং সংস্কৃত টুল শিক্ষা আমরা ধারাবাহিকভাবে রাখার চেষ্টা করব। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आप बस बने रहिए हमारे साथ। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाएं फिर करें विश्वास। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 2018 में एसएससी जीडी पदों में नियुक्ति के लिए जो इंटरव्यू लिया गया था और उसमें जितने भी कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट में भी फिट आए थे, अब तक उनको नियुक्ति क्यों नहीं दिया गया? सरकार से सवाल करते हुए आज कछार जिला के कई युवा कछार जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने एक विरोध प्रदर्शन किए और बाद में उन्होंने कछार जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का एक रिपोर्ट। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एसएससी जीडी का डेट है, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी। की बात आती है तब सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की बहाने करते हैं। अभी चल रहा है बिहार में इलेक्शन, कौन सा वाला कोरोना और कौन सा सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है। जब हमारा बेरोजगार का जब बात आता है तो बोलते हैं नहीं आपका वाला अभी नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा ऐसा। और मोदी जी हमेशा वादा करते हैं कि भाई हम लोग इतना 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 आदमी को रोजगार देंगे, 10 लाख को, 20 लाख को, 25 लाख को। अभी 25,000 अगर बढ़ा नहीं सकते पोस्ट तो क्या आप 20 लाख को क्या देंगे ज्वाइनिंग और ये सब। अभी और पोस्ट अनाउंस किया है कि अभी तक वैकेंसी है पैरामिलिट्री में, मतलब 1,10,000 जैसा वैकेंसी है। अभी 1,10,000 की हमारा यही मांग है कि आप हमारा सबका अगर 3 साल हो गया है, मेरा भी एज चला गया है, तो प्लीज़ आप लोग करें और सबको ज्वाइनिंग दे, मेडिकल जितना भी है। और मतलब हम लोग फौज में जाना था, सुबह 4 बजे उठ के दौड़े भी हम, परीक्षा भी दे हम और आके इधर धर्मा भी दड़े हम। तो हम लोग करें तो क्या करें, हम लोग क्या अभी क्या करेंगे। बचपन का सपना लेके बैठे हैं, अभी हम लोग देश के लिए बेटा है, सब किसान का बेटा है। मैं भी एक छोटा मोटा घर परिवार से बिलोंग करता हूँ। अभी हम लोग उतना ह्यूज अमाउंट नहीं है कि हम लोग कुछ बड़ा कुछ करें। अभी जितना है हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं और बॉर्डरों पे जाना चाहते हैं। तो ये सब हमारे साथ ऐसा खेल वो अच्छा नहीं हो रहा है। और हम लोग को दिया बोला कि कॉपरेटिव उधर किया, बोला कि आप पहुँचा देना और हमारी बातें
और 12 तारीख को हम सब दिल्ली जा रहे हैं राजघाट पे। अच्छा। जो अभी धरना प्रदर्शन के लिए बापू के समाधि के उधर धरना प्रदर्शन रणबीर सर ने हम लोग को सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग उधर जा रहे हैं 12 तारीख को। पूरा शांतिपूर्ण तरीके से धरना होगा। हम लोग जाने वाले, हम लोग को डिसिप्लिन पता है कैसे करते हैं, हम लोग सब अच्छे से करेंगे और पता नहीं सरकार क्या करेगी। हमारा जो हो रहा है हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। के सारे कांस्टेबल हैं, कांस्टेबल नहीं मतलब हम लोग भर्ती ने दिया था, अभी उसका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। उसीलिए हम लोग आज मैडम के पास आके मेमोरेंडम जमा दिया। तो सभी हम लोग आज 3 साल से इसके लिए दौड़ रहे हैं, मतलब एसएससी के लिए। एसएससी के लिए। तो हम लोग का सब कुछ मेडिकल हो गया है, रनिंग हो गया है, फिजिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया है। 2018 में दिया था, तो हम लोग का एज भी खत्म होने वाला है। के बाद इनफैक्ट आज भी उसका कोई अभी तक कुछ नहीं हुआ है, बस रीमेडिकल अभी खत्म हुआ कुछ दिन पहले। 3 साल में अभी तक मतलब उसी का प्रोसेसिंग चल ही रहा है। तो इसके लिए सरकार कोई मतलब कि जल्दी नहीं कर रहा है। तो हम लोग का टोटल फीट कैंडिडेट है 85,000 फीट है। और अभी हम लोग सीट इंक्रीज के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि सरकार अगर सीट बढ़ा दे तो सभी का फ़ायदा होगा। हम लोग सब गरीब घर के हैं, जितना भी हम लोग का कोई काम धंधा कुछ नहीं है। तो हम लोग इंटरव्यू देकर बैठे हैं, ये 3 साल से सोच रहे हैं। और सब हम लोग का दोस्त का बहुत ये भाई है, हम लोग का इनका भी एज पार हो गया है, दूसरा भर्ती कभी दे नहीं सकते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एज नहीं है, दूसरा कोई मतलब कोई भर्ती दे ही नहीं सकता, दूसरा भर्ती दे ही नहीं सकता। आज करीमगंज में भी 2018 में एसएससी जीडी पदों में नियुक्ति के लिए जो इंटरव्यू लिया गया था और उस इंटरव्यू में जितने भी युवा मेडिकल टेस्ट में भी फिट हुए थे, उनको अब तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली। ऐसे ही कुछ सवाल करते हुए आज उन्होंने करीमगंज सांसद कृपानाथ मालाह के निवास स्थान पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किए। इस दौरान उन्होंने सांसद कृपानाथ मालाह के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन भी भेजे। आइए देखते हैं करीमगंज से हमारे संवाददाता बाबुल सिंह का यह रिपोर्ट। हम आपको बता दें कि एसएससी जीडी एक तरह की सीमा सुरक्षा बलों की कांस्टेबल पद होता है। 2018 में ही इस पद के लिए इंटरव्यू लिया गया था और इंटरव्यू के दौरान करीमगंज जिले के कई युवा मेडिकल टेस्ट में भी फिट आए थे, लेकिन अब तक उनको नियुक्ति क्यों नहीं मिला। निकल गया सर। अब अगली हम लोग कोई किसी की भर्ती नहीं दे सकते सर। इसके लिए हम सर गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि हमारी सर इसमें वैकेंसी इंक्रीज कर दिया जाए सर। नित्यानंद राय ने बोला है, खुद सर बयान दिया है कि उन्होंने 1,11,000 अर्धसैनिक बल वैकेंसी खाली है सर। एसएससी के द्वारा अर्धसैनिक बलों की जो वैकेंसी है सर पैरामिलिट्री का, उसका भर्ती होता है सर। उसमें हम लोग सर सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, मेडिकल, दौड़ और रिटर्न भी हो गया सर। ऑलरेडी 2 बार कट ऑफ मेरिट बन चुका है सर। अभी भी एक मेरिट निकाला जाएगा सर। ऑलरेडी इसमें पोस्ट है सर 60,210 और सर टोटल, लेकिन लड़के सर इसमें 15 से 20,000 लड़के ज़्यादा हो जाएंगे सर, तो उनको निकाल दिया जाएगा सर। तो हम चाहते हैं सर वैकेंसी इंक्रीज करके ज्वाइनिंग कर दिया जाए और प्लस वेटिंग लिस्ट निकाला जाए सर, ताकि जो ज्वाइन नहीं करेंगे तो उन जगह पे बाकी सबको चांस मिल जाए सर। तो यही सर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर, और आप इसको लेकर सर बात भी करें सर। मैं बात भी करूँगा, पहुँचवा दूँगा। जी सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद। 2018 से हमारी भर्ती निकली थी, अभी 3 साल हो गया, हमारा कोई ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला। इसके लिए हम एमपी सर के पास आए थे और हमने अपना मेमोरेंडम एमपी सर को दिया ताकि वो प्राइम मिनिस्टर तक हमारा मेमोरेंडम पहुंचा दे। और सर ने हमें बोला कि हाँ आपका काम हो जाएगा। और सर हमारे 3 साल हो गया और हम चाहते हैं सभी हमारे भाइयों का ज्वाइनिंग हो जाए एसएससी जीडी में, और वैकेंसी 10 से 11,000 15,000 वैकेंसी बढ़ा के सभी हमारे मेडिकल फिट साथियों को जॉब मिल जाए इसमें। यही हम कहना चाहते हैं। इसके बारे में बोलो। और हमारे सभी साथियों का एज निकल गया है, इसमें 3 साल होने के वजह से सबका एज निकल गया है। हमारे पास और अगली भर्ती देखने के लिए कोई उम्र सीमा अभी तक नहीं बची है। तो हम चाहते हैं जितने भी अभी 60,210 इसमें एसएससी जीडी में वैकेंसी है, और हम चाहते हैं कि इसमें वैकेंसी बढ़ा के और सभी हमारे भाइयों का इसमें जॉब मिल जाए। जो 20 से 25,000 लड़के एक्स्ट्रा होंगे उनको भी एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग मिल जाए। और नित्यानंद राय ने खुद बोला है 1,11,000 वैकेंसी खाली है अर्धसैनिक बलों में। तो हम चाहते हैं 25,000 इंक्रीज करा के सरकार सभी एसएससी जीडी साथियों को नौकरी दे दे। नित्यानंद राय कौन? नित्यानंद राय तो संसद के मेंबर हैं सर। ठीक है, आपका नाम? और हम रणबीर सिंह, हमारे जो पैरामिलिट्री के अध्यक्ष रणबीर सिंह हैं, और हम लोग 12 तारीख के दिन
राजघाट पे धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। बापू के समाधि पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। ब्लैक दिवाली वहाँ पे मनाएंगे हम लोग। सिलचर शहर को कचरा मुक्त करने के लिए सिलचर शहर के 28 नंग वार्ड में करीबन 90 दुकानदारों को डस्टबिन प्रदान किया गया। 28 नंग वार्ड के पूर्व कमिश्नर अभ्रजीत चक्रवर्ती उर्फ झलक एवं कछाड़ के अतिरिक्त जिला उपायुक्त सुमित सातवान के निजी सहयोग से वार्ड के छोटे बड़े दुकानों में कुल मिलाकर 90 डस्टबिन वितरण किया गया। इस अवसर पर पूर्व कमिश्नर अभ्रजीत चक्रवर्ती उर्फ झलक का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। एक्चुअली আপনারা সবাই জানেন যে শিলচর শহর আমরা মোদিজির সরকার কেন্দ্রে আসার পর শিলচর শহর আমরা স্মার্ট সিটির জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজি সমগ্র ভারতবর্ষে 100টা শহরকে স্মার্ট সিটি বানাবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। সেই অর্থে শিলচরও পৌরসভাও সেই সভায় উপস্থিত ছিল দিল্লিতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে ক্রাইটেরিয়া দিয়েছিল, যে 3টা প্রধান ক্রাইটেরিয়া দিয়েছিল, সেই ক্রাইটেরিয়াতে পৌরসভা স্থান করতে পারেনি বলে আমরা স্মার্ট সিটি থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম। কি ছিল সেই 3টা ক্রাইটেরিয়া? প্রথম ছিল যে ডিজিটাল ট্যাক্স কালেকশন, যেটা আমাদের শিলচরে ছিল না। দ্বিতীয়ত যেটা ছিল যে এলইডি বাল্ব স্ট্রিট লাইটের সিস্টেম করা, যেটা আমাদের শিলচর পৌরসভায় আগে ছিল না। এবং 3 নম্বর হচ্ছে ডিটিডিসি, মানে ডোর টু ডোর কালেকশন, গার্বেজ কালেকশনের যে ব্যাপারটা ছিল সেটা শিলচর পৌরসভা ছিল না। তো ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন বোর্ড শিলচরে আসার পরে আমরা এই 3টা ক্রাইটেরিয়াতেই আমরা কাজ শুরু করেছি। আপনারা সবাই জানেন শিলচর পৌরসভার এখন ওয়েবসাইট বানানো হয়েছে। এখন আপনারা ঘরে বসে সেই ট্যাক্সগুলো দিতে পারবেন, ডিজিটাল আপনারা সেই সিস্টেম করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত শিলচর শহরের 75% ইলেকট্রিক পোলে আমরা সেই এলইডি বাল্ব আমরা লাগিয়েছি আমরা ইতিমধ্যেই। আর ডোর টু ডোর যে গার্বেজ কালেকশন, সেটা আপনারা সবাই জানেন বিগত 4 বছর থেকেই শিলচরে চলছে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক ওয়ার্ডে আমরা এখনও ভালোভাবে পৌঁছাতে পারিনি, কিন্তু অনেক জায়গায় আমরা সেই ডোর টু ডোর কালেকশনটা আমরা শুরু করেছি। এই যে 3টা বিষয় আমি বললাম, এই 3টা বিষয়ের মধ্যে 2টা বিষয় শিলচর পৌরসভা কাজ করেছে, যেটা নিজে থেকে করতে পেরেছে আমরা, যে ডিজিটাল কানেকশন আর এই যে এলইডি বাল্বের ব্যাপারে। কিন্তু ডোর টু ডোর গার্বেজ কালেকশন যেটা, এটাতে সম্পূর্ণভাবে যদি পাবলিক পার্টিসিপেট না হয় তাহলে সেই প্রকল্প সার্থক হবে না। এবং আমাদের যে স্বপ্ন স্বচ্ছ শিলচর বা শিলচর শহরকে আমরা স্মার্ট সিটি হিসেবে দেখতে চাই, সেই স্বপ্ন আমাদের তখনই সার্থক হবে যখন এই ডোর টু ডোর কালেকশনটা আমরা শিলচরবাসী সবাই মিলে আমরা সরকারকে বা পৌরসভাকে আমরা সহযোগিতা করব। এই ডোর টু ডোর কালেকশনটা শুধু পৌরসভা বা শুধু সরকার বা শুধু প্রশাসন সফল করতে পারবে না। এটাকে সার্থক করে তোলার জন্য শিলচরের নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে, যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বিগত 3-4 বছরে শিলচরের নাগরিকরা অনেক সচেতন হয়েছেন ডোর টু ডোর কালেকশনের ব্যাপারে। অনেক জায়গায় ডোর টু ডোর কালেকশন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটা দিচ্ছেন, কিন্তু অনেক জায়গায় এখনও অনেক জায়গায় আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। আর কিছু কিছু জায়গায় যেখানে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে ডোর টু ডোর কালেকশন পৌরসভার পক্ষ থেকে, সেখানেও কিছু কিছু নাগরিকরা সেটাতে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছেন না। তো আমরা 28 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে এই ডোর টু ডোর গার্বেজ কালেকশনের জন্য আমরা শিলচর পৌরসভার পক্ষ থেকে আজকে আমরা ডাস্টবিন দিয়েছি। এই জন্য আমাদের যে বিগত দিনের বোর্ড ছিল, সেই বোর্ডকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন ওনাকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বর্তমানে যিনি আমাদের এডিসি রয়েছেন, আমাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার শিলচর পৌরসভার সুমিত সাতবান সাহেব, ওনাকেও আমি আমার পক্ষ থেকে বা ওয়ার্ডের পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই প্রজেক্টটা আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের বোর্ড থাকতে, এবং উনি সেই প্রজেক্টটাকে যেভাবে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি ওনাকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমাদের জেলা উপাयुक्त মহাশয়াকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।